So let us continue with an example. We derived some relations between the pressure measurements from different reference levels. So let us assume this as vacuum, and then this is the surface where we live. And this is some pool or river. So here is the pressure known as pressure ATM, mean atmospheric pressure. And if we go in depth at some point and we want to measure pressure at this point, so this will be the gauge pressure if you measure from this level. So one way is to measure pressure based on the atmospheric pressure level. The next option is to measure from vacuum level. So this will be called absolute pressure. If you measure from vacuum level to this depth, this will be called absolute pressure. This is equals to pressure atmospheric, that is of course from this point to this point, and then some increased pressure known as gauge pressure. So यहाँ से यहाँ तक जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ से यहाँ तक जो प्रेशर है वो गेज प्रेशर है, और यहाँ से टोटल यहाँ तक इस डेप्थ तक ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो अगर आपको इनमें से कोई एक क्वांटिटी मिसिंग हो और दो दे दी जाए, then you can determine this. If you are given some absolute pressure at certain depth and you already know the atmospheric pressure, then you could compute the gauge pressure. So last time I told you that on an average, every creature on this surface of Earth bears a pressure of 10 to the power 5 Pascal. If you write in kilopascals, so this will become 100 times 10 cube kilopascal, Pascal. So this will be 100 kilopascal. So in some books you see 101.3 kilopascal as the atmospheric pressure. So it varies from one point to another a little bit because sea level is different at different locations. Okay, so based on this relation, let us solve a small problem. So I am going to write the problem. So the problem is
what will be the gauge pressure and absolute pressure of water at a depth of 10 meter below the surface. Below the surface. So the underlying fluid is the water. So this is our surface, and then this is water at a depth of 10 meter. So we select a point meter below this surface. यहाँ पे हमें जो है गेज प्रेशर भी चाहिए है, तो गेज प्रेशर तो वो होगा जो हम यहाँ से मेजर करेंगे, और एब्सोल्यूट प्रेशर भी चाहिए, तो उसमें हम ऐड कर देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज कि ये अगर हमारा वैक्यूम लेवल है तो यहाँ से यहाँ तक P एटमॉस्फेरिक होता है, यहाँ से यहाँ तक प्रेशर गेज होता है, और इन दोनों को आप ऐड कर दें, then you get the absolute pressure. So यहाँ से यहाँ तक एटमॉस्फेरिक, यहाँ से यहाँ तक गेज, और ये जो टोटल प्रेशर हो जाएगा दिस इज प्रेशर एब्सोल्यूट, ये भी चाहिए है। तो उसके लिए हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऑलरेडी पता होता है, वो लिख लेंगे। सो इम्पोर्टेंट ये है इसमें कि गेज प्रेशर जो है वो फाइंड किया जाए। सो चूंकि वाटर है अंडरलाइंग फ्लूइड, तो रो ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी आपको याद होना चाहिए, दिस इज 101 किलो पास्कल। ये अप्रोक्सीमेटली वही है जो आपको मैंने बताया था ना, 10 पावर 5 पास्कल। सो इस बुक में 101 किलो पास्कल लिया हुआ है, इट इज अप टू यू, आप 100 किलो पास्कल भी ले सकते हैं। दिस इज एक्चुअली 100 किलो पास्कल। तो ये चीज, इस चीज की केयर करनी है कि यूनिट सेम होने चाहिए जब आप रिजल्ट्स कंपाइल करें। सो प्रेशर गेज, प्रेशर का क्या फार्मूला है, रो जी एच, यही था प्रेशर हाइट रिलेशनशिप। सो रो की जगह होगा रो ऑफ वाटर, जी जो है वो आप 9.8 ले सकते हैं, और हाइट 10 है, सो 1000 into 9.8, you could take this as 10 approximately, it doesn't matter, or into 10 meter. So we have 98,000 Pascal. This is the gauge pressure. You can write as 98 kilo Pascal. So you see, this is 98 kilo Pascal. Just 10 meter below in this pool. जबकि इधर आप देखें तो कितने 1000 फीट का डिस्टेंस होता है, तब जाकर
100 किलो पास्कल का प्रेशर बिल्ड हुआ है। सो ये जो पूल है इसका पूल filled with air समझ सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था, we live in a pool filled with air। और यहाँ से आपने मेजर करना शुरू किया, इतना डाउन आने के बाद जाकर 100 किलो पास्कल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्ड हुआ हर क्रिएचर के ऊपर। लेकिन चूंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज हायर देन द डेंसिटी ऑफ एयर, तो पानी में तो सिर्फ 10 मीटर नीचे गए तो गेज प्रेशर जो है ये 98 किलो पास्कल हुआ। तो जो अब एब्सोल्यूट प्रेशर बनेगा कि अगर आप इस यहाँ से मेजर करना शुरू करें वैक्यूम लेवल से और इधर 10 मीटर डाउन पानी में मेजर किया जा रहा है, तो यहाँ पे इसके ऊपर कितना प्रेशर होगा। तो गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक, तो एटमॉस्फेरिक प्लस गेज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 101 किलो पास्कल प्लस 98 किलो पास्कल as the gauge pressure, so 199 किलो पास्कल। तो इट इज अप टू यू कि किलो पास्कल में रिप्रेजेंट करना है या पास्कल में। अगर पास्कल में करना है तो फिर इसको भी आप 10 टू द पावर 5 पास्कल लिखते ये अप्रॉक्सीमेटली, और इसको फिर ये 98,000 रहने देते, एंड देन यू कुड ऐड द टू वैल्यूज। सो इस छोटे से न्यूमेरिकल से मकसद ये था कि आपको प्रेशर की कैलकुलेशंस करना आनी चाहिए। मेन इसमें जो लिंक है वो ये गेज प्रेशर का है, that is rho gh, and rho is the density of the underlying fluid. So if this tank could be the fluid as oil, तो फिर ऑयल की डेंसिटी यूज कर लेते। एक छोटी सी एग्जांपल से मैं एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। मैंने आपसे कहा था कि 10 पावर 5 पास्कल ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक हो गया, मीन फ्रॉम वैक्यूम लेवल टिल दिस सरफेस ऑफ अर्थ। सो रो जी एच। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि इतना ही प्रेशर कितनी डेप्थ पे बिल्ड हो सकता है इफ आई डाइव इनटू ए स्विमिंग पूल। तो चूंकि यहाँ पे फिर वाटर है और प्रेशर मैं उतना ही बिल्ड करना चाह रहा हूँ, लेट अस से कि ये डेप्थ है जिसकी मैं कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ। इतनी डेप्थ के बाद जो प्रेशर है वो 10 पावर 5 पास्कल हो जाता है, जितना कि यहाँ पे है इफ यू मेजर फ्रॉम वैक्यूम लेवल। वो कितने हजार फीट का डिस्टेंस है। सो प्रेशर मुझे पता है, वो मैंने 10 पावर 5 पास्कल करना है। रो वाटर का लेना है, जी जो है अप्रॉक्सीमेटली हम 10 ले लेते हैं, और हाइट मुझे कैलकुलेट करना है। अब रो ऑफ वाटर क्या है? रो ऑफ वाटर है 1000 इंटू 10 इंटू एच, तो ये 10 पावर 5 हो गया, ये 10 पावर 4 है तो 10। सो सिंपली एक स्विमिंग पूल के अंदर 10 मीटर नीचे जाने पे आप उतना ही गेज प्रेशर बिल्ड कर लेते हैं जितना यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्ड हुआ होता है। तो यहाँ पर आप समझिए कि प्रेशर विल बी
almost double of the atmospheric pressure. तो एक तरफ इतनी ज्यादा हाइट से डाउन आने के बाद जो प्रेशर बिल्ड हुआ और दूसरी तरफ जस्ट 10 मीटर जाने से ही ये बिल्ड, वजह सिंपली है कि रो ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन रो ऑफ एयर. So with this I would like to end. तो इसके आप न्यूमेरिकल जो हैं वो बुक में से सर्च कीजिएगा. तो सिंपली ये है कि बस रिलेशन है एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस प्रेशर गेज. तो डिफरेंट किस्म के जो यूनिट्स हैं वो आपको बुक्स में मिल जाते हैं, जो आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उसमें भी ये दिए हुए हैं. सो आई विल अगेन से कि आपको ये मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है. डिफरेंट किस्म के आपके पास ये फार्मूलाज अवेलेबल होते हैं. लाइक अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का जो है वो आपको पता है जो यूनिट है वो है आपके पास न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. तो इसको हम पास्कल भी बोलते हैं. सही. तो 1000 पास्कल इज 1 किलो पास्कल, 1000 पास्कल इज 1 किलो पास्कल. इसी तरह आपके पास और भी प्रेशर के मेजरमेंट्स हैं. बार भी एक मेजरमेंट का स्केल है, टार भी यूनिट है प्रेशर मेजर करने का, बार भी है. ठीक है. millimeter of mercury, this is also a unit of pressure. तो इनकी आपस में कन्वर्जन और वो सारी चीज़ें हैं. जिस तरह आप जानते हैं कि एक हमारे पास CGS सिस्टम है, एक जो है MKS सिस्टम है, एंड सो एंड सो फोर्थ. तो इसी तरह जो है आपके पास प्रेशर को भी यूनिट्स डिफरेंट हैं. इट डिपेंड्स कि आप किस सिस्टम में काम कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच.